The Book of Psalms. Psalm 37, a Psalm of David. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off. But those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth. The Lord shall laugh at him, for he seeth that his day is coming. The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation. Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholdeth the righteous. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. They shall consume, into smoke shall they consume away. The wicked borroweth, and payeth not again, but the righteous showeth mercy, and giveth. For such as be blessed of him shall inherit the earth, and they that be cursed of him shall be cut off. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He is ever merciful and lendeth, and his seed is blessed. Depart from evil and do good, and dwell forevermore. For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land, and dwell therein forever. The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him. The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. Wait on the Lord, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. But the transgressors shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them, because they trust in him. भजन 37 कुल पद 40। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे
और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे। वे धुएं की नाई बिलाए जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने को यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है, और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर
उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, फिर एक बार हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आप जहाँ कहीं भी है, जिस परिस्थिति में भी हो, कैसे भी क्यों ना हो, वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। जब हम आत्मा में और जब सच्चाई में सचमुच परमेश्वर की जब आराधना को करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम सभी चीज़ों को भूल कर हमारा सारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर को रखते हैं। हालेलुया। तो आइए, एक छोटा सा गीत है और हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। हमारा वचन कहता है कि हम भेड़ों की नाई भटक गए थे। कैसे? एकदम भेड़ों की नाई भटक गए थे। कहीं भी हमारा रास्ता, हमारा मकसद जीवन का कुछ भी नहीं था। हम भटक गए थे, लेकिन सही समय पर उसने अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए एक जीने का एक मकसद और परमेश्वर को जानने के लिए, हम उसके वारिस बनने के लिए, उसके बेटे बनने के लिए हमारे लिए एक राह को बनाया। और वो राह बनाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह हमें मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बोलो, यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आइए, अपने हाथों को आप स्लोली या गुनगुनाते हुए, या फिर आपको लगता है कि इस गीत को आप अगर जानते हैं, आप अगर सुना है, तो आप लोग गीत को गा सकते हैं। आइए हम सब मिलके बोलेंगे, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। सब मेरे साथ बोलेंगे, कम ऑन चर्च, सब तैयार है? सो हियर वी गो। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। फिर से, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। जैसे वचन कहते कि परमेश्वर ने सूली पर हमारे सारे दुखों को, पापों को, रोगों को, सब कुछ ले लिया। हमारे बदले में उसने अपनी जान को दे दी, ताकि हम अनंत काल तक जीवन और जीवित रह सके। आमीन। हालेलुया। सूली पे ले लिया पापों को मेरे, बोले, सूली पे ले लिया पापों को मेरे। जा दे दी बदले में जान के मेरे, जा दे दी बदले में जान के मेरे। फिर से, सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जा दे दी बदले में जान के मेरे। तोड़ सारे बंधन, यीशु आ गया। तोड़ सारे बंधन, आजाद है गया। और जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। बोलेंगे, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। सारी कलीसिया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। Clap your hands. Hallelujah. Thank you Jesus. जैसे मैंने कहा कि हम भेड़ों की नाई भटक गए थे। हमारा कोई भी मकसद, कोई भी हमारा जीने का या फिर कोई ऐसा हमारा एक उद्देश्य नहीं था। हाँ, हम परमेश्वर को पूरी तरह भूलकर एक अलग रास्ते पे हम चले गए थे। लेकिन सही समय पर उसने अपने बेटे को भेजकर हर एक बातों के ऊपर उसने हमें जय को दिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ
भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, भटक रहा था मैं अंधेरी राह। फिर एक बार, भटक रहा था मैं अंधेरी राह। एक बार और, भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर, तन्हा अकेला जाता किधर। एक अच्छी खबर है, खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। जैसे कि एक कहावत है, जो सुनार जो होता है, सोना चांदी बेचने वाला, उसके पास जो धन रहता है जिसको कुबेर का धन बोलते हैं, जिसके पास वो धन है वो सबसे ज्यादा माला माल है करके कहता है, या छोटा धन जिसको मिला वो माला माल कहता है। लेकिन हम ऐसे कहेंगे, अगर यीशु हमारे पास है तो हम कंगाल कभी नहीं होंगे। हालेलुया। हम हमेशा के लिए माला माल है, हर चीज में हमारे अंदर बढ़ोतरी है, हर चीज में उन्नति है, हर एक चीज में हमारे लिए परमेश्वर ने जो रखा है अच्छा और भलाई को, उसको प्राप्त कर सकते सिवाय उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा। विश्वास है, यीशु है हमारे जीवन में, तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। चाहे लोगों के पास धन दौलत अपार क्यों ना रहे, लेकिन हमारे पास है, मेरे पास अगर यीशु है तो इन सबसे भी ज्यादा मैं धनवान रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, एक साथ, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सचमुच यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यीशु मेरे पास है तो मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि वो सब चीजों को तुम्हारे जो आपूर्ति है, जिसकी कमी है, उसको पूरा करने वाला खुदावन है। हालेलुया। रुके हुए कामों को शुरू करने वाला खुदावन है, बंद दरवाजों को खोलने वाला खुदावन है। हालेलुया। बीमारी से आजादी दिलाने खुदावन है। हालेलुया। दुख के बातों को हमारे अंदर से निकालकर हमारे लिए वो क्या करता है, दुख को हमारे लिए नृत्य में बदल देता है। कोई आदमी दुख में नाच सकते हैं क्या? ये सिर्फ यीशु के साथ ही हो सकते हैं। आमीन। आइए ताली बजा के प्रभु को महिमा करेंगे। इतना अच्छा यीशु मेरे पास है तो मेरे को जीवन में सब कुछ मिला। आमीन। थैंक यू। कम ऑन एवरीवन, आइए अपने ताली को बजाते हुए अपने हाथों से परमेश्वर को महिमा देंगे कि आज का दिन उसने बनाया, जिसमें हम आनंदित, खुश और परमेश्वर के लिए झूमे, नाचे और गाए। एवरीवन हो। ओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ सब मिलकर खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ सब मिलकर खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ
हमारे हो संग, कोई नहीं तेरे बिन। ओ हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो फिर से बादलों पे हमें लेने आने वाला है, अपने हाथों को उठा के हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु, तूने मुझे इस योग्य बनाया कि हम आपके बच्चे बन सके, आपके वारिस बन सके। कम ऑन एवरीवन, once more। ओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास से है चलना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। ओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास से है चलना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे,
गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। सब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ सब मिल हम खुशियाँ मनाए आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए परमेश्वर में हर एक दिन नया दिन करता है, क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। देखो वो सारे चीजें नहीं हो गई। इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, जिसमें हम आनंद खुशियां मनाएं। संसार में कितने ही क्लेश है, कितने ही दुख है, कितने ही संकट है, बीमारी है, बंधन है, और क्या है, श्राप है। लेकिन यीशु में इन सभी चीजों के ऊपर हमारे लिए जीत है। आमीन। क्योंकि यीशु ने शैतान को कहां पर हराया है? Come on। यीशु ने शैतान को कहां हराया? क्रूस पर हराया। सभी बोलेंगे, यीशु ने शैतान को कहां हराया? क्रूस पर हराया। तो यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पे हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 सबसे ऊंचा यीशु नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। अभी वो ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ना 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 जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। ओ हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम भूल जाए निराशाओं को, क्योंकि आशाओं का परमेश्वर हमारे साथ। आइए परमेश्वर की भलाई को हम याद करते हैं। धन्यवाद। सभी लोग मिलकर अपने हाथों को उठाते हैं, उसके किए हुए भलाई उपकारों को स्मरण करते हैं। उसने दी गई सांसों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद। उसने दिए हुए एक नए दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर
सभी मिलकर धन्यवाद करें। धन्यवाद जीसस, सभी मिलकर धन्यवाद। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद करते रहे। हर एक उपकार के लिए धन्यवाद करते, हर एक काम के लिए धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। जब वो मुटे ओ धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। तुझे बात आ रही We worshiping you. हालेलुया, धन्यवाद तेरा ही नाम करते, जलाल हर एक नया दिन बनाने वाला परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते, हमारे जीवन में खुशी लाने वाला परमेश्वर तुझे धन्यवाद जीने का करते। मकसद। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Oh, हालेलुया। सभी लोग अपने मुंह खोले धन्यवाद करते, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ। धन्यवाद करते, आज के हर एक भलाई कामों के लिए हम आपको धन्यवाद। आज के दिन की रोटी के लिए हम आपको धन्यवाद करते, तू हमारा वो परमेश्वर है, कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। परमेश्वर, हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारे पैर, इन सभी चीजों से आपकी महिमा होने ओ देते यस हैं। लॉर्ड जीसस, हमारे ताबा आप लीजिए मसीह, ताकि हम प्रभु जी फिर से हम दलदल में ना जाएं। ओ जीसस, फिर से परमेश्वर उस दुख के उस परमेश्वर उस कठिनाई के उस फिर से हम उस जिंदगी में फिर दोबारा हम ना जाएं, न जाए, क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर, हमसे भूल हो सकता यस है, लॉर्ड, यस लॉर्ड, लेकिन आप पवित्र परमेश्वर है, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। ओ यस लॉर्ड, प्रभु जी हमें विजडम दे रजा, ओ यस ताकि हम तेरे अंदर और मजबूत बने। जीसस, तू मेरा पहला प्यार है यस यीशु, लॉर्ड, यस तू मेरा खुदा है, तू मेरा अब्बा है, तू ही मेरा सब कुछ है। यस लॉर्ड जीसस, तू ही मेरा सब कुछ। कब से खड़े तैयार हम तेरा इंतजार है, कब से खड़े तैयार हम खड़े तेरा इंतजार है, यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। हम आपका इंतजार करते हैं यस परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, क्योंकि हमें पता है प्रभु जी संकट के समय में, मुश्किल घड़ी में सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें साथ दे सकते हैं। जीसस, हमें विलंब से क्रोध करने वाले राजा, हम तेरे उस क्रोध से प्रभु जी, उस क्रोध से हम बचना चाहते हैं, हम तेरे प्यार को पाना चाहते हैं परमेश्वर, हमारे गलती को फिर से सुधार कर तेरी और हम बढ़ना चाहते हैं शिवा। जीसस, ओ जीसस, ओ हालेलुया जीसस।
आप को सिद्ध करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। उसके सम्मुख में हम चाहते हैं हर परिस्थिति में, हर हालात में हम उसकी आराधना में, उसके साथ में एक होकर हर बात जाते हैं और केवल हमारा केंद्र केवल यीशु की ओर हम अपने ध्यान को रखेंगे। सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। तुमसे खड़े तैयार हम खड़े, कब से खड़े तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। तुझसे ही प्यार है, तुझसे यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, हो प्यार के ऊपर दया का सागर, एक अच्छा दोस्त हम इंतजार करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है। हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर, तू हमारी जरूरत है खुदावन, तू हमारे लिए जरूरत है खुदावन, तू मेरे लिए जरूरत है खुदावन, मेरे आंसू को पोंछने वाले। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सभी मिलके बोलेंगे शुक्रिया तेरा। सभी अपने मुंह खोलेंगे, परमेश्वर को शुक्रिया बोलेंगे। सभी हाथों को उठाते हैं तो धन्यवाद करेंगे उस महान खुदावंत को। सभी मिलके बोलेंगे, अपने हाथों को उठाते हैं, सभी बातों को भूल जाते हैं।
कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आइए अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर को शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। सब मिलकर बोलेंगे, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, अपने हाथ उठा के शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दिल से और आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं उनके बीच में तू कर रहता है करके परमेश्वर तूने वादा को दिया। हम विश्वास करते तू हमारे मध्य में है, तू हमारे बीच में हर एक लोगों को तो इस वक्त स्पर्श किया है, दर्शन के द्वारा, वाणी के द्वारा, आवाज के द्वारा तूने प्रभु जी उनसे बातें किया है, उनको प्रभु जी तूने एक पर्व को दिखाया है, तूने एक योजनाओं को बताया है। ओ उनके कानों में प्रभु जी तेरी आवाज को तूने पहुंचाया बोल के हम धन्यवाद करते हैं। उनके दृष्टि के सामने दर्शन को दिया करके मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वो वचन के स्क्रिप्चर्स के द्वारा तूने बातें किया बोल के मैं धन्यवाद करता हूँ। होने दे यीशुआ ये दिन परमेश्वर कभी भी ना भूलने पाए कोई भी लोग तेरे लिए। परमेश्वर तू जब भी हमारे लिए कोई भी काम करता है वो हर एक दिन नया ही रहता है करके वचन हमारे लिए इस नई आशीष के लिए, एक नया अभिषेक के लिए, एक नया परमेश्वर ताजगी के लिए हम आपको धन्यवाद और शुक्रिया कहते हैं। प्रभु जी आगे का समय तू तेरे हाथों में लेके चल परमेश्वर, हर बातों का ताबा आप लिखिए परमेश्वर। इस कलीसिया की हर एक जरूरत, इस कलीसिया के हर एक नींव की जो मजबूती चाहिए वो पवित्र आत्मा आप रहिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू मजबूत गढ़ बनकर इस कलीसिया को तू चला परमेश्वर। हर एक लीडर्स को, हर एक परमेश्वर जो इनिशिएटिव ले रहे लोगों को, उनके हर एक चीज का, हर एक बातों का ताबा आप लीजिए रक्षा। और ये कलीसिया हमारा नहीं बल्कि आपका कलीसिया। हमारे कलीसिया में और भी उन्नति, और भी परमेश्वर प्रगति, और भी रिवाइवल आने दे यीशु के नाम से। और परमेश्वर नए नए लोग आने दे यीशु के नाम से। और भी नए नए चमत्कार होने दे यीशु के नाम से। और भी नई नई बातें दिन ब दिन बढ़ते जाए ताकि तेरे राज्य में प्रभु जी एक्सपैंड हो रहा जाए, तेरे राज्य को एक्सपैंड कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। इसमें से कोई भी गौरव हम अपने नहीं लेते, कोई भी मान सम्मान हम अपने हाथों में नहीं लेते खुदावन। हम कोई भी परमेश्वर, कोई भी प्रभु जी क्रेडिट हम नहीं लेते, नहीं लेते प्रभु। सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं राजा। सारा आदर, महिमा और सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, आपको मिले। अगर हम घमंड करेंगे तो आप में करेंगे, आप करेंगे। अपने आप पर घमंड नहीं करेंगे, लेकिन यीशु में हम घमंड करेंगे कि तू हमारा खुदा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, नया ताजगी, नया अभिषेक के लिए, नई बातों के लिए, एक शुरुआत के लिए। यस लॉर्ड। और जो रुके हुए काम थे
जैसे एरिको की दीवार टूट गया था वैसे तूने तोड़कर एक नए काम को फिर से कलीसिया के लोगों के बीच में तो शुरुआत को किया बोल के मैं Oh, yes, Lord Jesus. सारा आदर सम्मान आपको मिले आपको मिले। और आप ही को मिले। Yes, Lord Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं मांगते हैं। आमीन Amen, Jesus. आमीन Amen. आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जब से हम हमारे जीवन में परमेश्वर गॉड आया है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं लॉर्ड। परमेश्वर जैसे कि जब से मैं पहचान रही हूँ गॉड को, उस वक्त से परमेश्वर ने हमारे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं रहती थी, उठती थी, परमेश्वर ने इतने उनको लोगों में बदलाव किए लॉर्ड कि जब से मैं वचन बोलती थी कि धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने मेरे पति का हृदय परिवर्तन किया, वैसे परमेश्वर तूने मेरे पति का हृदय परिवर्तन किया। मेरे जीवन में मेरे रहने के लिए हमारा खुद का छत नहीं था, मुझे रहने के लिए खुद का घर दिया परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। जैसे कि परमेश्वर जब हर समय प्रेयर के समय हम सैम 91 के वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे परिवार को प्रोटेक्शन के लिए कवर करती थी, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा परमेश्वर कि जब से कोविड आया है, एक गवाही को बोलती हूँ, जब से कोविड आया है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर, मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट में ड्यूटी करी हूँ, लेकिन मुझे गॉड ने उसको छूने नहीं दिया। जैसे गॉड का वचन कहता है कि मैं महामारी से तुझे बचाऊंगा, वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ जितने लोग मेरे काम करते थे, जितने पेशेंट्स थे, उतने बहुत सारे पॉजिटिव आए। मेरे साथ बात करने वाले भी पॉजिटिव थे, उनके साथ मैं जो काम कर रही थी वो भी पॉजिटिव आए, लेकिन गॉड ने मुझे कभी छूने नहीं दिया। उस महामारी से अब तक के समय तक बचाया लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर। केवल एक गॉड, ये जिंदा खुदा यीशु ही कर सकता है, कोई दूसरा और कोई नहीं कर सकता है लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, अब तक के समय तक मुझे मेरे परिवार को संभाला लॉर्ड। धन्यवाद हो। जैसे कि परमेश्वर लास्ट संडे का वचन था कि विश्वास के ऊपर हम जीते हैं, वही उस वचन के द्वारा परमेश्वर अब तक के समय तक तूने मुझे मेरे परिवार को संभाला। धन्यवाद हो परमेश्वर। और परमेश्वर और दूसरी गवाही देना चाहती हूँ कि जब से मैंने 3-4 महीने से ही मैंने जब से ऑफरिंग देना स्टार्ट किया, जब से मैंने ताइद देना स्टार्ट किया, उस वक्त से परमेश्वर मैंने फर्स्ट ताइद दिया, उसी वक्त मेरा जो घर लोन, मेरा होम लोन था, वो जो 25 इयर्स का था, उस वक्त मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड आया, उसने वो जो 9% से मेरा लोन चालू था, वो उसने मुझे होम लोन ट्रांसफ़र करके 6.9 से करवा दिया, और उससे मेरे टोटल 10 इयर्स मेरे बच गए। मतलब जैसे बोलते कि 20 लाख मेरे बच गए। एक केवल खुदा ही कर सकता है। उस खुदा को, उस अब्बा खुदा को धन्यवाद करते ईश्वर, उस जिंदा लहू के उसने हमें इतना संभाला है लॉर्ड। धन्यवाद करते ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि पुष्पा सिस्टरने पुष्पा सिस्टरने प्रार्थना केली आणि प्रमिला, माझी बहीण आहे प्रमिला, तिला किडनी स्टोन होतं, ते पडलं आणि तिच्या अंगामध्ये भूत होतं, ते निघलं. आणि नाही तुम्ही काय केला जेव्हा माहीत झाला किडनी स्टोनचा, त्याचा खूप ना दर्द, पोट दुखत होतं, काय झालं? पोट दुखत होतं, तर तिचा नवरा आणि दोघं मिळून, नवरा बायको मिळून प्रार्थना केली. आणि तुम्ही तिथं होता का? नाही, मी नव्हती. रात्री 2 वाजता. आणि तुम्ही काय प्रार्थना केली, आणि कोण प्रार्थना करत होता? पुष्पा सिस्टरनी प्रार्थना आधी केली होती, पण ती पोटात दुखायला लागल्यावर 2 वाजता पोटात दुखायला लागलं ना, तेव्हा तिचा नवरा आणि ती दोघं जण बसली, येशूला प्रार्थना केली आणि प्रार्थनेचं तेल ग्लासात टाकून पाण्यामध्ये टाकून तिने ते पिलं, आणि नंतर तिचा तो खडा पडला आणि पोटात दुखायचं थांबलं, मग तिला झोप आली.
म्हणून येशूला धन्यवाद, कोटी कोटी धन्यवाद. Church, here we are to announce and do the banns for the marriage of David and Jacinta. So David Richard is son of Emmanuel and Jacinta is a daughter of Esudas. They're going to come together for marriage in the month of December 12th. So please pray for them, and we are announcing this ban so that you may know this, and if you have anything against this, you can come and speak to us before marriage but not after marriage, or this is on you. Okay, anyways, pray for the blessings. God bless you. Hallelujah, praise the Lord. God is good. This evening again, Sunday church. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर को आज के शाम के लिए हम महिमा देते हैं. And as we come to the word, let's look to God to hear from Him. और जैसे वचन की ओर जा रहे तो हम अपेक्षा करेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करें. Dear Heavenly Father, thank you for the word. स्वर्गीय पिता, हम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं. The Bible says the word enlightens our heart. बाइबल कहती है कि वचन जो है हमारे हृदय में उजाला लेकर आता है. Let Lord your word shine into our hearts today. होने दे प्रभु कि आज आपका वचन हमारे हृदय में चमक उठे and bring light, और वो उजाला को and we लेकर आए. speak light to every darkened hearts as we preach. जैसे हम प्रचार करते हैं हर एक अंधियारा हृदय में हम आपकी रोशनी को जब बोलेंगे, In Jesus' name, यीशु के नाम में. Holy Spirit help us, Lord. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम Amen. Praise the Lord. So I was just thinking about Genesis chapter 1. और मैं सोच रहा था उत्पत्ति उसका पहला अध्याय. God says in the darkness, let there be light. परमेश्वर कहता है कि जहाँ पर अंधियारा है वहाँ पर उजियाला हो. You see, when God says let there be light in darkness, और जब परमेश्वर कहता है कि अंधियारा में उजियाला हो, that means He does not like darkness. इसका मतलब है कि परमेश्वर को अंधेरापन पसंद See, नहीं the है. one who created us, देखिए जिसने हमको बनाया, He does not like darkness. उसको अंधेरा पसंद नहीं है. Even we don't like darkness. और हमें भी अंधेरा पसंद नहीं है. Even we say children, you know, they are small babies. देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, If you suddenly see the light goes off, अगर अंधेरा हो जाता है they cannot talk, तो वो बोल नहीं सकते हैं. but still, you know, they cry. Suddenly the lights are off. लेकिन अचानक से जब लाइट अगर चला जाता है तो वो रोने लगते हैं. Light nobody likes. Sorry, darkness nobody likes. अंधेरा किसी को पसंद नहीं है. You see why? पता है क्यों? Because darkness is of devil. क्योंकि अंधेरा जो है वो दुष्ट की ओर से है. Even Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, a man एक व्यक्ति who goes to hell, जो नरक में जाता है, there will be darkness and gnashing of teeth. वहाँ पर अंधेरापन और दांत पीसना होगा. How terrible it is. ये कितनी भयानक बात है. The hell is full of darkness. और नरक पूरा अंधेरापन से भरा हुआ है. And we see we don't want anybody, if one of us should go to the hell. और हमें से हम सभी लोग यही चाहते हैं कि कोई भी नरक में ना जाए. But you see, the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, the world has gone into darkness. लेकिन संसार इतना अंधेरापन में गया है, Nobody is seeing light. कोई भी उजाला को नहीं देख पा रहा है. And there should be somebody who should say like God. और ऐसा कोई भी होना चाहिए परमेश्वर के जैसा जो कह सके. They should speak light in this dark world. और इस अंधेरे संसार में उजाला को बोलना चाहिए. When the earth was shapeless, और जब पृथ्वी आकार रही थी, when it was void, उसमें खालीपन था and darkness, और अंधेरा था, that time God came. और उस समय में परमेश्वर आया. The Bible says Holy Spirit hovered upon the earth. और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा जो है पृथ्वी पर मंडलाता था. And God said, let there be light. और परमेश्वर ने कहा कि होने दे वहाँ पर उजाला He हो. divided darkness and light. उसने उजाला और अंधेरा दोनों को अलग किया. Whenever God comes जब भी परमेश्वर आता है into your house, आपके घरों में, into your life, आपके जीवन He में, divide darkness and light. तो वो अंधेरा और उजाला दोनों को विभाजन कर You know देता why? है. पता है क्यों? Because God Himself is light. क्योंकि परमेश्वर खुद उजाला है And He dwells in light. और वो उजाला में निवास करता What है. a powerful thing it is. ये कितनी सामर्थ से What भरी a हुई बात wonderful है. thing it is. ये कितनी अद्भुत बात है. God Himself is light. परमेश्वर खुद उजाला है And then He dwells in the light. और वो खुद उजाला में निवास करता You है. understood what I mean?
आपको समझ में आया कि मैंने क्या कहा? He is the God of lights. वो जो है उज्याला का परमेश्वर The है। Bible says, और बाइबल कहती है every good things. हर एक भली In वस्तु, Hebrews chapter 11, इब्रानी उसका 11 अध्याय, it says every good gift, हर एक जो अच्छी वस्तु, a gift वरदान, एक तोहफा, एक वरदान, comes from the fathers of light. जो उज्याला का परमेश्वर है उसकी ओर से Father आता of है। lights. जो उज्याला का पिता He है, is the father of lights. वो उज्याला का पिता है। And he never wanted there should be darkness in the world. और वो कभी नहीं चाहता कि पृथ्वी पर अंधेरापन आए। You know, Jesus said in John chapter 1, यीशु ने कहा यूहन्ना उसका पहला अध्याय में verse 4 to 5, 4 से 5 वचन it says में, in the Bible, और बाइबल में कहा गया है in him was life, कि उसमें जीवन था, and the life was the light of men, और वो जीवन मनुष्य का उज्याला था, and the light shines in darkness, और उज्याला अंधेरेपन में छाता है, and darkness did not comprehend it. और अंधेरा ने उसका साथ नहीं दिया। Amen. Praise the Lord. So this is what wonderful. ये कितनी अद्भुत बात है। God always wants there should be light in your houses. परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि आपके घरों में हमेशा प्रकाश रहे। Jesus said, यीशु ने कहा, I come मैं आता हूँ and I am light, और मैं उज्याला हूँ, and I am light of the world. और मैं इस संसार का उज्याला हूँ, And one who follows me और जो मेरे साथ चलता है will not walk in darkness, वो अंधेरा में नहीं चलेगा, but they will be in light. लेकिन वो उज्याले में रहेंगे। Today, dear church, आज प्रिय कलीसिया, let's see what does 1 John 1:6 to 9 it अगर हम says. पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 6 से 9 वचन को अगर पढ़ते हैं, It talks about he is in the light. वहाँ पर कहा गया है कि वो उज्याले में मौजूद है, We have fellowship, और हमारी संगति, and if any man sins, और अगर कोई व्यक्ति पाप करता है he is deceiving himself, तो वो खुद को फंसाता है, and the truth is not in him. और उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं रहती। So what does it mean? तो इसका अर्थ क्या है? The truth is not in him. और उस व्यक्ति के अंदर वो सच्चाई नहीं है। You say, I walk with God, अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, I have fellowship with God, मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूँ, and still you have darkness in your life, और फिर भी आपके जीवन में अगर अंधेरा है, and you and me, we do the works of darkness, आप और हम अगर हम अंधेरे के काम को करते you हैं, cannot say we are walking in the light. तो हम नहीं कह सकते कि हम उज्याले में चल रहे It हैं। says the same thing. If we say that we have fellowship with him यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अगर हम उसके साथ संगति करते हैं and walk in darkness, और अंधेरे में चलते हैं, we lie and do not practice the truth. हम झूठ कहते हैं और हम सच्चाई के बातों में नहीं चलते हैं। So what is truth? सच्चाई क्या है? Jesus is truth. यीशु ही सच्चाई है। It's so beautiful when I talk about Jesus. और ये बहुत सुंदर बात है जब मैं यीशु के बारे में कहता You know, हूँ। Jesus himself is truth. यीशु खुद सच्चाई है, There is nobody in this world who can bring truth in light. और ऐसा संसार में कोई नहीं है जो उज्यालों को हमारे जीवन में लेकर आए। And Jesus brought the truth in the light. और यीशु मसीह ने उस उज्यालों को बाहर लेकर आया, And that's what we are grateful. और इसी बात के लिए हम उसके आभारी हैं। Bible says बाइबल कहती है Moses brought law, मूसा ने नियम लेकर आया, but Jesus brought grace. लेकिन यीशु मसीह ने अनुग्रह लेकर आया। Now what is the difference between this? और इन दोनों बातों में अभी फर्क क्या है? So if we see the law, अगर हम नियम देखते हैं, according to the law, नियम के अनुसार the one who sins should die. जो अगर पाप करता है तो उसको मर जाना The one who चाहिए। does lawlessness, अगर वो नियम के बिना अगर कोई काम कर देता है, the one who follows unrighteousness, अगर कोई अधर्मिकता के काम को करता and है, he lives in unrighteousness, अधर्मिक तरीके से रहता है, there is death in his life. तो उसके जीवन में मृत्यु है। But what happens when we accept Christ Jesus? लेकिन क्या होता है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं? It says we need to be very faithful to Jesus. और यहाँ पर कहा गया है कि यीशु के प्रति हमें बहुत विश्वास योग्य रहना We है। need to be faithful with his salvation. उसके उद्धार के साथ हमें विश्वास योग्य Now रहना है। today when I say let there be light, और जब मैं आज कहता हूँ कि वहाँ पर उजियाला हो, I want you and I to focus on the gospel and the letters of Paul. तो मैं इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारा ध्यान पौलुस के पत्रियों पर और सुसमाचार के किताबों पर रहे। And when we see Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को देखते he हैं, never compromised sin.
और वो कभी पाप के साथ समझौता नहीं He करता है। condemned sin, उसने वो पाप को हमेशा दुत्कारता है, but he did not condemn sinners. लेकिन उसने पापियों को कभी नहीं दुत्कारा। But he condemned sin. लेकिन वो पाप को दुत्कारता He है। condemned sin in Pharisees. और फरीसियों के अंदर पाप को उसने दुत्कारा, He condemned sin in everybody. हर एक के अंदर जो पाप था उसको दुत्कारा, But he did not neglected sinners. लेकिन उसने पापियों को कभी अनदेखा नहीं किया। So what is now the point is और अब हमारा पॉइंट ये है that one who lives in Christ Jesus कि जो मसीह यीशु में निवास करता है and the one who has taken baptism और जिसने बपतिस्मा लिया है, and then still he continues in the sin, अगर वो फिर भी अगर पाप में रहता है what he must do. तो उसे क्या करना है? Today, as I preach this message, और आज जैसे मैं संदेश को प्रचार कर रहा हूँ, I want to give you a hope from Lord Jesus Christ. मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के तरफ से एक आशा देना चाहता हूँ। See, he is life and in him there is light. देखिए वो खुद जीवन है और उस जीवन में उजियाला है। And then every time when you go to him, और हर बार जब आप उसके पास जाते हो he will bring light into your life. तो वो आपके जीवन में उजियाला लेकर आएगा। See, because he is in you. देखिए क्योंकि वो खुद आपके अंदर He है, is with you. वो आपके साथ है। He said, I will not leave you nor forsake you. उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं And त्यागूंगा। that's what he said, follow me, इसलिए कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, take up the cross अपने क्रूस को उठाकर and follow me और मेरे पीछे चलो and learn from me. और मुझसे सीखो। Today, Jesus is inviting us to learn to walk in the light. आज हमें यीशु मसीह सिखा रहा है कि हम उसके साथ उजाला में चले। And then when we have taken the baptism, और जबकि हमने बपतिस्मा लिया है, that shows that ये इस बात को दिखाता we है have forsaken the darkness कि हमने अंधेरे को छोड़ दिया है and we are following Jesus Christ in the light. और उजाला में हम यीशु के साथ चल रहे And हैं। that's what John chapter 1 says. यही बात यूहन्ना पहला अध्याय कहता He है। transferred us from darkness to the light. उसने हमें अंधेरे से उजाले में लेकर गया है And that's what he is, Jesus. और वो यीशु मसीह खुद इस Whenever ये बात है। you go to him, जब कभी भी आप उसके पास whenever जाओगे, you follow him जब कभी भी आप उसके पीछे चलोगे and you walk with him, और उसके साथ चलोगे, you will not walk in darkness. आप अंधेरे में नहीं चलोगे। Now the point is, अब पॉइंट ये है, one day Peter came एक दिन पतरस आया and he said, और उसने कहा Lord, कि प्रभु, how a man can live a real righteous life? कि एक व्यक्ति कैसा एक धर्मी जीवन को जी सकता है। Because Jesus was saying, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे a थे rich man कि एक अमीर व्यक्ति cannot enter into the kingdom of God. वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। But he was questioning himself. वो लेकिन वो खुद को प्रश्न पूछ रहा था, How is possible? ये कैसे संभव है? Jesus did not spoke about richness. यीशु ने अमीरीपन के बारे में नहीं कहा, He did not say about, he didn't condemn rich people. या यीशु मसीह ने धनवान लोगों को नहीं दुत्कारा। He was talking about what is rich in your life. वो पढ़ा रहे थे कि एक मनुष्य के अंदर अमीर क्या है। What you are taking richness in your life. आप आपके जीवन में कौन सी अमीरपन के बातों को ले रहे हो? What you are practicing much in your life. आप आपके जीवन में कौन सी बातों का ज्यादा अनुसरण कर रहे हो? What you are following much in your life. The rich is defined as much. देखिए जो अमीरपना है उसका अगर हम परिभाषा देखें तो जो बहुतायत में रहता है। So how you and I are showing interest in money or in anything, gold or work, whatever, much, your time, your energy, your thinking, you give it to that thing. देखिए आपका जो ताकत होता है, आपका समय होता है और आपका ज्यादा ध्यान आप उन बातों पे देते हैं जिसमें आपका ज्यादा दिलचस्पी होता है। Much you're giving to that thing. उस वस्तु के पास आप ज्यादा ध्यान देते हो जिसमें आपका ज्यादा Or दिलचस्पी sometimes you होता है। and I become so greedy. या आप और मैं कई बार इतना हम लालची हो जाते We हैं। want more. You know, that's what richness is all about. ये अमीरपन की बात यही है कि हमें और Jesus did चाहिए। not condemn, having good gold in your life.
यीशु ने इस बात को नहीं दुत्कारा कि आपके जीवन में सोना नहीं रहना If you चाहिए, have good money in your bank, या आपके पास अच्छा बैंक में पैसा हो, if you have good houses, he does not condemn. In fact, he says, I'm going to take you to the land where honey and milk flows. या फिर अच्छा घर हो तो उस बात को दुत्कारता नहीं, बल्कि यीशु मसीह ये कहता है कि उस जमीन में लेकर जाऊंगा जहाँ पर दूध और मध बहती In fact, he है। says, you're going to go to that houses which you never builded. यीशु ये कहता है कि तुम वो घरों में जाओगे जिन घरों को तुमने नहीं बनाया। God is interested in giving you these things. और परमेश्वर का दिलचस्पी इसी में है कि वो इन बातों को आपको प्रदान करे। But the thing is, लेकिन बात ये है, by getting into greediness, लालच में जाने से we get into darkness. हम अंधेरे में चले जाते And हैं then slowly the light departs from us. और धीरे धीरे उजाला हमसे दूर हो जाता है। And what the Bible says, और बाइबल क्या कहती है? if once you follow Jesus Christ, अगर आप एक बार जब यीशु के पीछे चलते हो, you need to continue follow light. आपको लगातार उजाला के पीछे चलना है। And that's what the Bible is saying here. और वही बाइबल इस बात को कह रही है। The word itself is light. और वचन ही प्रकाश है। David said, दाऊद ने कहा, Lord, your word is a light unto my feet. कि प्रभु तेरा जो वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, Praise the Lord, unto my ways. मेरे रास्तों के लिए। So David knew this. दाऊद इस बात को जानता था, Whatever I have now, जो भी मेरे पास है, this is all of God. ये सब परमेश्वर का ही है। But once I follow these things and leave God, लेकिन अगर इन बातों के पीछे चलकर अगर मैं परमेश्वर को त्याग देता हूँ, that is what I am walking or I am in the darkness. तो मैं अंधेरे में चल रहा हूँ या जीवन में अंधेरा आ गया है। You slowly you see thing, because the great riches is not light. देखिए, जो अमीरपन है, धन है, वो आपका उजियाला नहीं है। Everything that glamours, whatever its glimpses, that is not truth. जो भी चमकता है वो सच्चाई नहीं है। Those are things like what we use in the daily life. वो वही बातें जो हम रोजाना जीवन में उपयोग करते हैं। And we use it to bless others so that others may live and serve. और उन्हीं बातों का हम औरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो भी सेवा कर पाए। Everybody should be blessed. That's what the main intention. और मेन हमारा यही एक इच्छा है कि सभी लोगों को आशीष मिले। You are not going to run to it. लेकिन उन बातों के पीछे हम भागेंगे Because नहीं। once you start running towards those things, अगर हम बातों के पीछे भागने के लिए लग जाते हैं, then you are getting into the darkness. तो आप अंधेरे में प्रवेश करने लगते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise so the Lord. your time, how much you spend in light? तो आपका जो समय आप उजाला में कितना व्यतीत करते हो? It says this I say. कहता है कि it says in Ephesians chapter 4, इफिसियों उसका 4था अध्याय 17 to 19, 17 से 19 वचन and में, 21 to 24, 21 से 24 तक, 30 to 32. 30 से 32 तक। If you see, read this. अगर इन वचनों का अगर हम It पढ़ते says हैं, that कहता है कि this I say कि मैं ये कहता हूँ and testify in the Lord और प्रभु में साक्षी देता हूँ that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, कि जो अन्य जाति जैसा अंधेरे में चलते हैं वैसा तुम न चलो। in emptiness in their mind, उनके मनों में अंधेरा खालीपन है, and their hearts are darkened, और उनके हृदय अंधेरे से भर गया है, their understanding is darkened, उनका समझ में अंधेरापन आ चुका है, they have been separated from the life of God, परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, and they ignore what is truth और वे सच्चाई को अनदेखा करते हैं because of the blindness of their heart, क्योंकि उनके हृदय में अंधेरापन who आने के being कारण, past feelings, who walked in past feelings जो पुराने अनुभव में चलते थे and given themselves और अपने आप को उन्होंने दे दिया to the dead works, मृत्यु के कार्यों के to लिए, work all uncleanness. हर एक अशुद्ध के कार्यों Now के see, लिए। this is important. ये मुख्य है। To work all uncleanness वो हर एक अशुद्धता के लिए काम किया with greediness. लालच के साथ। That is what greediness. वही जो लालचपन है, Where greediness comes, जहाँ पर लालच आता है your heart is darkened. तो आपका हृदय में अंधेरा आ Your जाता है, heart is blinded. आपका हृदय में अंधेरापन आता है। Praise the Lord. That's very important. ये महत्वपूर्ण That है। is not Christian life. ये मसीह जीवन नहीं Now है। what is Christian life? मसीह जीवन क्या है? To walk with Jesus Christ. कि यीशु मसीह के साथ हम चले, And when you walk with Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हो, in him there is light. उसके अंदर ही प्रकाश है, He is the way. वही मार्ग है, He will show you the way. वो आपको मार्ग दिखाएगा। I remember there was vision given to me. मुझे याद है जो मुझे दर्शन मिला,
back many years back. बहुत वर्षों पहले I just saw myself. It was a afternoon. A light was there, and I'm walking in the way. और दोपहर का समय था, उजियाला था और मैं रास्ते पे चल रहा था. And as I'm walking, और जैसे ही मैं चल रहा था, God is showing me many turnings. परमेश्वर मुझे बहुत सारे ऐसे मोड़ को बता रहा And था. as I'm turning, और जैसे मैं मुड़ रहा था, the sun's light is coming upon me. सूर्य का उजाला मुझ पर आया. And then I remembered as I'm walking. और मुझे याद है जैसे मैं चल रहा था. As Samuel says, और जैसा कि भजनकार कहता your है righteousness, कि तुम्हारा धार्मिकता, God's righteousness, परमेश्वर की धार्मिकता will come upon you तुम्हारे ऊपर आएगा. like the afternoon light. और दोपहर के उजाले के समान. Or afternoon heat. या दोपहर के गर्मी के जैसा. Praise the Lord. Praise the Lord. That should be our life. वैसा हमारा जीवन होना And I चाहिए. thank God for that vision. और उस दर्शन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद And I देता came to know और मुझे पता चला that God is saying, कि परमेश्वर कह रहा है don't turn left or right. कि बाएं या दाएं नहीं मुड़ना. That's what Isaiah says. Don't turn left or right. यशायाह कहता है कि बाएं या दाएं मत मुड़ो. Just focus on God. सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान लगाओ. He is light. कि वो खुद प्रकाश He है. is going to show you the turnings. वो आपको मोड़ बताएगा. There is going to be a turning in your life. आपके जीवन में एक मोड़ आएगा. As I'm preaching, जैसा मैं प्रचार कर रहा I हूँ, see some turning points are coming in your life. मैं देख रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ And आएंगे. God is asking you to take decisions. और परमेश्वर आपको कहेगा कि कुछ निर्णय को लो. And as you take decisions, और जैसे आप निर्णय को लोगे, the Lord will bless you and prosper you. परमेश्वर आपको आशीष देगा और So उन्नति dear brothers देगा. and sisters, प्रिय भाई और बहनों, listen to me. सुनिए. God is going to show you the ways. परमेश्वर आपको मार्गों को दिखाएगा. And in that ways there is no darkness. और उन मार्गों में कोई अंधेरा नहीं The होगा. ways of God is full of light. परमेश्वर के मार्ग उजाले से भरे हुए But the हैं, ways of the world is full of darkness. लेकिन संसार के मार्ग अंधेरे से भरे हुए हैं. So that's what I'm saying. इसलिए कह रहा हूँ, When you take baptism, जब आप बपतिस्मा लेते हो, your journey of light starts. आपका उजाला का सफर शुरुआत होता And you है have to continue. और उसको आपको लगातार Of कायम course, there's रखना going है. to be darkness in your life as you walk. जैसा आप चलोगे अंधेरा आएगा जीवन में. Because this earth is also teaching us there is light and darkness. क्योंकि ये हमको संसार भी सिखाते हैं कि उजाला अंधेरा दोनों Morning है. and night comes. सुबह और रात दोनों आता है. Evening also comes. शाम भी आती है. That is what the journey is all about. वही यात्रा है. And that's what when we live on this earth, और इसलिए जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, we see shadows and light. हम देखते हैं परछाई और उजियाला. So you cannot escape and I cannot escape. आप और मैं इसे भाग नहीं सकते हैं. So what we should do? हमें क्या करना है? That's what Peter was asking. इसलिए पतरस पूछ रहा था, If it is hard for the people to enter into the kingdom, अगर ये लोगों के लिए कठिन है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, how we can enter into the kingdom? तो हम उस राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? And but 1 John 1 says, लेकिन पहला यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन कहता walk है, in the light उजाला में चलो and the blood of Jesus cleanses you. और यीशु का लहू तुम्हें शुद्ध करेगा. Now 3 things here. अब यहाँ पर 3 बातें हैं. As you walk with Christ, जैसा आप मसीह के साथ चलते हो, when you have fellowship with Father, जब आप पिता के साथ संगति करते हो, and when you have communion with the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के साथ सब आप सहभागी हो जाते हो, what happens to your life? तो आपके जीवन में क्या होता है? Let me explain you. मैं आपको बताऊंगा. See, I was saying you walk with Christ in new life. मैं जैसा कि कह रहा था कि जब आप नया जीवन में चलते हो, Your journey starts. आपका यात्रा की शुरुआत होती There's है. evening and night in your life. आपके जीवन में सुबह और शाम आती है, And you at night, और रात आती है, and you don't know night time you cannot see properly. और रात के समय में धुंधलापन दिखता है, पूरा साफ नहीं The दिखता है. devil will bring night. और शैतान रात को लेकर आएगा. The devil will bring blindness. शैतान अंधापन को लेकर आएगा. But what we should do? लेकिन हमें क्या करना है? We should remember Jesus is with us. हमें याद रखना है कि हमेशा यीशु हमारे साथ हो. We should be true to Jesus. यीशु से हमें सच बोलना है. He is our groom and we are bride. वो हमारा दूल्हा, हम उसका दुल्हन है. He will never leave us. वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा. He will be with us. वो हमारे साथ रहेगा. He will teach us. वो हमें सिखाएगा. Like a groom teaches the bride. जैसे एक दूल्हा दुल्हन को सिखाता है. And as we are bride, और जैसे हम दुल्हन हैं, we are going to go under the shadow of Jesus. हम यीशु के परछाई में He is जाएंगे. our groom. वो हमारा दूल्हा है. He is our main man.
वही हमारा मुख्य व्यक्ति है। And He will teach us. वो हमें सिखाएगा। Because that is what the new life is in Jesus Christ. यीशु में नया जीवन यही सिखाता Once है। you have taken baptism, जैसा आपने बपतिस्मा लिया, that shows that you are washed completely. ये इस बात को दिखाता है कि आप पूरा रीति से धुल गए That हो। means you are cleansed already. आप पहले से शुद्ध हो गए हो। But what happens when you after baptism still things are not really easy? फिर क्या होता है बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर बातें अगर सीधी नहीं रहती है तो You bath but still you become dirty. आप नहाते हो फिर भी गंदे रहते हो। What happens? क्या See, होता that's है? what 1 John 1 verse 6 to 8 if you read it. इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 6 से 8 कहता है, If you walk in the light अगर आप प्रकाश में चलते हो and have fellowship with God, और परमेश्वर के साथ संगति करते हो, the blood of Jesus cleanses you यीशु मसीह का लहू तुम्हें शुद्ध करता है from all unrighteousness, सारे अधार्मिकताओं से, from all sin. सारे पापों से। And now और अब next verse says, और दूसरा वचन कहता if है, you say there is no sin in you, अगर आप कहोगे कि आपके अंदर पाप ही नहीं है you deceive yourselves. तो आप अपने आप को फंसाते हो। So cleansing is 3 things. तो साफ करना 3 बातें हैं। What is those 3 things? वो 3 बातें क्या है? 3 बातें हैं। In the whole world, people पूरे संसार में लोग follow that. उस बात के पीछे चलते हैं। That's what when you work hard whole day इसलिए जब पूरा दिन आप कठिन परिश्रम करते हो and you sleep, और फिर आप सो जाते हो, morning what you do? सवेरे आप क्या करते You हो? go for bathing. आप नहाने चले Because जाते हो। yesterday you were not really had good, body. Your body smells. You're dirty. क्योंकि आपको पता चल जाता है कठिन परिश्रम करने से पूरा शरीर गंदा हो गया है। Even your clothes you just put for wash. और आप आपके गंदे कपड़े भी धोने के लिए डालते हो। It doesn't mean that you are unclean, इसका मतलब ये नहीं कि आप अशुद्ध हो, but you need to give your clothes for washing and you should have bath. लेकिन आपको नहाना जरूरी है और कपड़े धोने देने के लिए भी महत्व है। Praise the Lord. That's what you do in the morning. यही आप सवेरे के समय में करते हो। But whole day one more thing you do. लेकिन पूरे दिन में आप और एक बात करते हो कि What you do whenever you get the chance, you go into the bathroom, wash your hands, clean your hands, clean your legs. कभी भी आपको अगर मौका मिलता है तो आप बाथरूम में जाके आपका हाथ पैर सब धो के उसको स्वस्थ अच्छा करते हो। Daytime you don't take bath. दिन में हम नहीं नहाते हैं, But you just wash your hands, you wash your legs. हम हाथ पैर धोते हैं। That's what Peter was saying. इसलिए पतरस कह रहा He था, said to Jesus, ने यीशु से कहा, should you do one thing, you don't only wash my feet but wash my whole body. इसलिए पतरस ने यीशु से कहा कि आप मेरे पैरों को नहीं बल्कि पूरा शरीर को शुद्ध करो। Now Jesus turned to him and said, what Peter, what you're saying? तो अभी यीशु मसीह फिर पतरस की ओर मुड़कर कहता है कि तू क्या कह रहा है? Now you see, Jesus यीशु at the supper, उस भोज के समय में he is washing the disciples' feet. वो सारे चेलों के पैर को धो रहे थे। Now his calculations are different. He's watching, oh, Andrew is finished. John is finished with the feet washing. आप पतरस सोच रहा था कि अभी अंद्रियास का हो गया, दूसरा चेला का हो गया। Now he is calculating in his mind. अब उसके मन में वो सोच रहा था, I ख्याल want to कर be रहा more था purer than these people. कि इन सारे चेलों से ज्यादा मुझे और शुद्ध होना है। Okay, Jesus is washing feet. कि यीशु मसीह पैर धो रहे हैं Or their feet are clean, but I want to have bath with Jesus. और उसने कहा कि उनके पैर शुद्ध हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह मुझे नहलाए। Most of the time, believers think I'm more righteous than others people. बहुत से बार लोग ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरे से वो खुद ज्यादा We धर्मी have हैं। competition in righteousness or in holiness. पवित्रता में और धार्मिकता में हम एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। We keep on accusing people. हम लोगों को दोष लगाते हैं। Or moreover, we have pride in our holiness. Oh, we walk in righteousness. Believers, especially let me talk Christian. I mean, our believer people, those who are baptized, speak in tongues. They think like sometimes they are holier than any other people. मैं विश्वासी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लिया, वो सोचते हैं कि अन्य लोगों से वही धर्मी और पवित्र है And Peter is thinking, oh, I should get bathed fully now from Jesus. और पतरस यही सोचता है कि अब यीशु मसीह मुझे पूरा शरीर को नहलाना चाहिए। Jesus turned to him and he said, hey, no man, no need of bath. No need, it's okay, full. Once, the one who goes out and comes, you need to just have bath, wash only feet. No need to have the whole body washed. यीशु मसीह यही उसको इस बात को समझाता है कि एक व्यक्ति नहाने के बाद दोबारा नहाना जरूर नहीं है, बस हाथ पैर धुल जाए तो काफी है। That's what Jesus said, you are in me.
इसलिए कहता है कि तू मुझ में है and I am in you. और मैं तेरे अंदर हूँ। That is enough. वही काफी है। That is enough. वही काफी I है। am the truth. मैं ही सच्चाई हूँ। I am the one मैं ही वो हूँ who is holy. जो पवित्र है। And when I am in you, और जब मैं तुम्हारे अंदर you're हूँ already holy. तो तुम फिर पवित्र बन गए। I am light. मैं उजाला हूँ। And when you walk in me, और जब तुम मुझ में चलते हो no more you are in darkness. तो आप अंधेरे में नहीं हो। Praise the Lord. Praise the Lord. That's what the Christian life is. मसीह जीवन यही है। There is going to be hurdles. ऐसे बहुत सारे ऐसे रुकावट होंगे। There will be the works of devil in your life. शैतान आपके जीवन में काम करेगा। But you should remember the blood of Jesus. लेकिन आपको यीशु मसीह का लहू को हमेशा ध्यान रखना है। See, the three things I was saying. देखिए 3 बातें को मैं कह रहा था। I was saying it cleanses you. मैंने कहा कि वो आपको शुद्ध करता है। And then it cleansed already. और वो कहता है कि पहले से शुद्ध कर दिया है। And then it's going to cleanse you in future. वो आपको भविष्य में भी शुद्ध करेगा। So past, present and future. भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। Cleansed you. पहले साफ शुद्ध कर दिया। Cleaned you. आपको पूरा रीति से साफ कर दिया। And now cleanses you. अब आपको वो साफ कर रहा है। And this would be cleaning you regularly. और वो हमेशा आपको साफ करता रहेगा। And और when you sin, जब आप पाप करोगे, don't sit and enjoy your life. बैठकर आपका जीवन का मजा मत लीजिए। You think that you do unrighteousness. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अधर्म के काम करोगे And you don't think about that anything. और कुछ नहीं सोचोगे, You don't care about it. अगर आप उसका ख्याल नहीं रखोगे, And still you say मैं बाजा बजाऊंगा, मैं ताली मारूंगा, मैं गाना गाऊंगा, सब चलेगा. So that doesn't work. ये काम नहीं करता है। Because in this Christian life, क्योंकि मसीह जीवन, Christian life is always going to God. मसीह जीवन जो है हमेशा परमेश्वर के निकट जाना है। The Bible says those who are humble, बाइबल कहता है कि जो नम्र है, God will give them grace. परमेश्वर उनको अनुग्रह देगा। Listen, dear brothers and sisters. सुनिए प्रिय भाई और बहनों, The Lord is asking us, परमेश्वर हमको पूछ रहा है come to the light. कि उजाला के पास आओ। Because let there be light in your life. क्योंकि होने दे आपके जीवन में उजाला आए। When you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आओगे, and when you tell your friend about your weakness, जब आप आपके दोस्त को आपके कमजोरी के बारे में बताओगे, and you are really open to Jesus, और जब आप खुले तौर पर यीशु से बात and करोगे, you say, Lord, I want this thing to be dealt with. और जब आप कहोगे कि मैं इन बातों के साथ नहीं जूझना चाहता हूँ, This is what I have trouble in my life. ये मेरे जीवन में एक संकट है, I have darkness. वो अंधेरा लेकर आया Somewhere है। I feel I am just losing my light. कहीं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा उजाला को खो दे रहा So हूँ। you just run to Jesus, आपको सिर्फ यीशु के पास दौड़ना है, and you're faithful with your sin. और आपका जो पाप है, That's why I said the next verse says, इसलिए अगला वचन कहता है, it says that if we say that we have no sin, अगर हम कहेंगे कि हमारे पास पाप ही नहीं we है, deceive ourselves, तो हम अपने ऐसा बोलकर अपने आप को फंसा देते and हैं, the truth is not in us. और फिर सच्चाई हमारे अंदर नहीं रहती But है। when we confess our sins, लेकिन जब हमारे पाप को हम अंगीकार hallelujah, करते हैं, when you are faithful, think about how much God is faithful. आप सोचिए अगर आप विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर और कितना For the one विश्वास योग्य रहेगा। who has given his blood, जिसने अपना लहू दे दिया, he is faithful to his blood वो उसके लहू के लिए भी विश्वास योग्य है, to forgive you आपको माफ करने के लिए, and cleanse you आपको साफ करने के लिए, from all unrighteousness. हर एक अधर्मिकता से ले। Unrighteousness should be dealt strongly. अधर्मिकता से लेखा बहुत मजबूती से होना चाहिए। What was wrong in Samson? शिमशोन में क्या गलत बात थी? He thought everything is fine. उसने सोचा कि सब कुछ सही है। He had God in his life. उसके जीवन में परमेश्वर था। He had power in his life. उसके जीवन में वो सामर्थ्य था। But he was not with God. लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं था। So most of the time we think we are Christians, we believers, everything is fine, but he was not with God. बहुत से बार हम विश्वासी सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, लेकिन शिमशोन उस समय में परमेश्वर के साथ नहीं था। He did not turn up to God. वो परमेश्वर के पास नहीं मुड़ा। What happened? फिर क्या हुआ? He was living his life in darkness. वो अंधेरे में अपने जीवन जी रहा था। He thought it is okay, everything is okay, power of God, gift of God is there, okay. उसने सोचा परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वरदान है। We are blessed everywhere.
हम सभी जगह पर आशीषित हैं, but that is not going to work in our life. लेकिन वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। The first thing is important. और पहली मुख्य बात यह है कि seek ye the kingdom of God. कि परमेश्वर का राज्य का पहला खोज करो। He sought Philistines, Samson sought Philistines. शिमशोन ने फिलिस्ती लोगों को देखा। Philistines is related to the devilic works. और फिलिस्ती ये जो लोग हैं वो शैतान के कामों से जुड़े हुए हैं। Most of the time he was related to that part. बहुत से बार वो उस बात से जुड़ा हुआ था। He did not turn up. वो नहीं मुड़ा। But when in the prison, लेकिन उस बंदी गृह में, when being light in him, जब उसके पास उजियाला था, but his eyes were blinded, लेकिन उसके आंखों में अंधापन आया, he started to turn around. वो गोल घूमने लगा। And he said, और उसने कहा, I need a turning point. उसने कहा कि मुझे अभी मुड़ना जरूरी है। A turning point. एक मोड़ आना चाहिए। Where I can see light in my life. जहाँ पर मैं मेरे जीवन में उजियाला को देख सकता हूँ। How wonderful Jesus is. कितना यीशु अद्भुत है। We have Jesus as friend. हमारे पास यीशु एक दोस्त के नाते हैं। We have Jesus as an elder brother. हमारे पास यीशु एक बड़े भाई के समान है। We can talk to him. हम उससे बात कर सकते हैं। I can talk to him. मैं उससे बात कर सकता हूँ। Brother Johnson can go to his throne boldly. उसके सिंहासन के पास धैर्य से हम जा सकते हैं। Because of the blood. क्योंकि यीशु के लहू के कारण। And wash ourselves. और अपने आप को हम शुद्ध कर सकते हैं। Wash our feet, wash our hands. हमारे हाथ पाँव को हम धो सकते हैं। No need of getting bath. ऐसा नहीं कि नहाना है। But you just go and say, oh, here is uncleanness. Here is some dirt. Clean yourself. That is most important. You have to see. Then you can find yourself. You are with Jesus. जहाँ पर गंदा है उस जगह को साफ करके फिर हम यीशु के साथ उज्जाला में रह सकते हैं। I'll tell you, most of the people, बहुत से लोग, they have forgotten how to walk with God. वे भूल गए कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। 1 John is calling you. पहला यूहन्ना आपको बुला रहा है। He is giving invitation. वो आपको न्योता दे रहा है। Oh, let there be a turning point in your life. कि आपके जीवन में वो मोड़ आ जाए। Let there be a turning in our lives. हमारे जीवनों में वो मोड़ आ जाए। That we may see light of God. कि हम परमेश्वर का उज्याला देख पाए। God may shine upon us. परमेश्वर हमारे ऊपर चमक उठे। And the Bible says. और बाइबल कहती है। Oh, wake up those who are sleeping. और बाइबल कहती है कि सोए हुए लोग जाग जाओ। Get up. उठ जाओ। Arise. उठ खड़े हो जाओ। Arise for righteousness. धार्मिकता के लिए उठ जाओ। Shine for God. और यीशु परमेश्वर के लिए चमको। The day has gone. वो दिन बीत गया। Don't sleep. Nobody sleeps in the daytime. दिन के समय में अब कोई नहीं सोता है। Understand? Many people sleep in daytime. बहुत से लोग दोपहर के समय में सोते हैं। Whole day sleep, whole night sleep. पूरा दिन सोते, पूरे रात सोते हैं। I don't know how they sleep. मुझे नहीं पता कि वो कैसे सोते हैं। You put water on them, still they sleep. अगर उन पे पानी में डाल देंगे तो भी सोते हैं। You take their body into gutter, still they'll sleep. अगर उनको उठा के गटर में डालोगे तो भी सोएंगे। You know why? Because they are in fog, in dhund. क्योंकि वो उस धुंध में हैं। You understand that? Many people nicely they drink. The body is thrown into gutter still. बहुत से लोग पीने के बाद फिर अगर गटर में गिर जाते तो भी उन्हें पता नहीं पाता। Many of our believers we live our life like that. बहुत सारे हम विश्वासी लोग वैसा जीवन को जीते हैं। Nothing really affects us. हमें कुछ भी वो बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। But today I'm calling you. लेकिन मैं आज आपको बुला रहा हूँ। Let's wake up for righteousness. हम धार्मिकता के लिए उठ जाए। And the light of God shine upon us. और परमेश्वर का उज्ज्वला हम पर चमके। And let there be light in our life. और हमारे जीवन में चमक आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says. बाइबल कहती है। If indeed you have heard of him, अगर आपने सही मायने में उसके बारे में सुना है, and have been taught by him, और उसके द्वारा सिखाए गए हो, as the truth is in Jesus, और जैसा सच्चाई यीशु के अंदर है, that you put off the former conduct, कि आप आपका पुराना चाल चलन को त्याग दे, the old man which grows into corruption, और जो पुराना मनुष्य जो है वो नाशवंत बातों में रहता है, and lives in deceitful lust, और वो फंसाने वाली बातों अभिलाषाओं में रहता है। It is old life. यही सब बातें पुराने जीवन की है। Let us not live being in past feelings. हमारे जो पहले के अनुभव में हम न रहे। Not in uncleanness with greediness. और लालचपन या अशुद्धता में न रहे। Praise the Lord.
Praise the Lord. If I say uncleanness, there are a lot of things about uncleanliness. अगर मैं अशुद्धता बोलता तो उसमें बहुत सारी बातें आती है. Being we Christians, we need to really observe these things. और एक मसीह होने के नाते इन हर एक बातों पे हमें ध्यान देना अनिवार्य है. And the Bible says, और बाइबल कहती है, and do not grieve the Holy Spirit of God. कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. You read all this, we need to read continually. I feel that, this week we should really read Ephesians chapter 4, 17 to 19, 21 to 24, 30 to 32. इन दिनों इस हफ्ते में हम चाहते हैं कि आप इफिसियों का 4था अध्याय 17 से 19, 21 से 24, 30 से 32 पढ़ो. Do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. That is in you. Who is in आपके अंदर you? है. Who is in you? आपके अंदर कौन है? You are sealed for the day of redemption. और छुटकारा का दिन के लिए आपको रखा गया है. That means you are not still redeemed. क्या आपका मतलब छुटकारा नहीं हुआ है? We are redeemed. हमारा छुटकारा हुआ है. But how come we are going to be shown as redeemed? लेकिन हम छुटकारा किए गए हैं कब प्रदर्शित होगा? When we have the seal of the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर होगा. When the second coming of the Lord comes, जब प्रभु यीशु का मसीह का दूसरा आगमन होगा, or those who are dead in Christ already, या फिर जो मसीह में पहले से मर गए हैं, on the Spirit there is a sealing of the Holy Spirit. उनकी आत्माओं पर पवित्र आत्मा को छाप है. That he is saved one. कि वो बच गया है. He is redeemed one. उसको उसका छुटकारा किया गया है. And then when angel sees that, oh, this is redeemed one, they will just pick us like this. और जब स्वर्गदूत देखेंगे कि उनका छुटकारा हुआ है तो वो उठा लेंगे. Hallelujah. Dear brothers and sisters, that's what we need to read this. It says, let all bitterness, इसलिए प्रिय भाई बहन हमें ये पढ़ना है कि सारा जो कड़वाहट है, wrath, गुस्सा, anger, क्रोध, clamor, or evil speaking, या बुराई बातों को कहना, put away from you. इन हर एक बातों को त्याग देना है. With all greediness, सारे लालचपन को live, छोड़ देना है. and let us be kind to one another. और हम एक दूसरे के साथ दया दिखाएं. Tender hearted, विनम्रता से. forgive one another. एक दूसरे को माफ करते हुए. You understand that God has forgiven you. देखिए परमेश्वर ने आपको माफ किया है. How cannot you forgive others? तो आप भी औरों को माफ कर सकते हैं. If you have light, अगर आपके पास उजियाला है, you don't want to see darkness in others' life. तो आपको दूसरे के जीवन में भी अंधेरा नहीं देखना है. If they come to you, अगर वो आपके पास आते हैं, your sister, आपकी बहन, or your brother, या आपका भाई, or in Christ, those who are believers or in household people, या आपके घराने में जो आपके मसीह में भाई बहन हैं, you and I need to forgive them. आपको और मुझे माफ करना है. Because God forgive us first. क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमें माफ किया. Because we ran towards light. क्योंकि हम उजाले के पास हम पहले भागे. And that light gave us in this darkness light. और उस उजाला ने इस अंधेरेपन में हमें उजाला दिया. So when we have light, जब हमारे पास उजाला है, this is our responsibility. जब ये हमारी जिम्मेदारी है, that we should shine upon others. कि हमें औरों के ऊपर चमकना है. So that their darkness should be disappeared. ताकि उनका भी अंधेरापन गायब हो जाए. Not having all bitterness, anger, and accusing people. ऐसा नहीं कि जलन, गुस्सा और लोगों पर चिल्लाते रहें. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों. That's what I say. इसलिए मैं कहता हूँ, let's stop walking in bitterness. कि हम कड़वाहट में चलने से रुक जाए. These all are works of the devil. ये सारे शैतान के काम हैं. It's a works of darkness. ये अंधेरा का काम है. Evil speaking. बुरा बोलना. About others, anger. दूसरे के बारे में गुस्सा करना. This all we need to leave and go to our brothers and sisters and have fellowship with them. ये सारी बातों को त्याग कर, छोड़कर हमारे भाई बहनों के पास जाकर संगति करना. How you fellowship with them? आप उनके साथ संगति कैसे करते हो? You pray. आप उनके साथ जब प्रार्थना करोगे, you meditate, you don't talk फालतू, not talk. या इधर उधर का बात न करते हुए, you don't waste time. समय को बर्बाद न करते हुए, your talk is not about criticizing. आप जब बात करते हो तो द्वेष के बारे में नहीं. Not only just always laughing. या हमेशा हंसना नहीं. No, that is not okay. वो ठीक नहीं है. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, let us stop laughing much. अब हम ज्यादा हंसना रुक जाए. Let's be serious with our lives. हम हमारे जीवन के साथ गंभीर हो जाए. You see, the world has come into darkness. देखिए अभी पूरा संसार अंधेरा में आ रहा है. No vaccine, nothing. They cannot see it.
कोई उनको कोविड के लिए कोई वैक्सीन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। Blindness has come. अंधापन आया है। Nobody can do anything. कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। But thank for Jesus. लेकिन यीशु के लिए धन्यवाद हो। He takes us into light. वो हमें उजाले में लेकर चलता है। As many as times we go to Him, जितने बार हम उनसे पास जाएंगे, He makes our darkness disappear. वो हमारा अंधेरापन को गायब कर देता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So dear church, when we go to Him, तो प्रिय कलीसिया, जब हम उसके पास जाएंगे, He gives us light. वो हमें उजाला देता है। Recently, I've been hearing wonderful testimony. मैं बहुत अद्भुत गवाहियों को सुन रहा हूँ। I just thank God for Sister Pushpa. मैं सिस्टर पुष्पा के लिए धन्यवाद In देता this lockdown, I was telling everybody, लॉकडाउन में मैं सभी को कह रहा था, everywhere in all our churches, सारे कलीसियाओं में, in every area or station, सारे एरिया में, सारे स्टेशन में, I was saying मैं कह रहा था that come together, कि एक साथ आओ, no matter what happens. चाहे कुछ भी हो जाए, Night time, रात के समय after में 9 o'clock, 9 बजे के I बाद, was in USA, मैं जब यूएस में but था, my trial or my pain was this, that we all should come in WhatsApp, every area, every cell to come in WhatsApp. You know what is the real basic thing I wanted is this, that we should have fellowship with each other. और मेरे हृदय में यही बात था कि पूरा सभी लोग व्हाट्सएप में एक साथ जुड़ जाए प्रार्थना के लिए, ताकि हम संगति कर सके। Hallelujah. Then that's what, I thank God for Pushpa sister. She did, taking fellowship of God Copper, and then, the church on WhatsApp. And I really appreciate that. And I saw in even Brother Johnson and other leaders, they took, and we were continually pressing hard to see that we may come together. But sad thing is this, many of our believers did not come. और मैं जो हृदय में मेरी वो बात थी कि हमारे अगुवे सारे लोगों को व्हाट्सएप में एक साथ लेकर आए, वो प्रार्थना कर पाए, संगति कर पाए। कुछ लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए। See, from phone, when Sister Pushpa was praying, देखिए फोन के जरिए जब सिस्टर प्रार्थना कर रही थी, demons were casted out. दुष्ट आत्माएं भाग निकले। So these people were just waiting from down from Bhadravati. The people were waiting for the phone call of Pushpa. और सिस्टर के फोन के लिए रुके हुए थे भद्रावती से। And they just waiting because they had darkness, and they was eagerly waiting for the light to shine upon them. क्योंकि उनके जीवन में अंधेरा था और वे प्रकाश के लिए यत्न से रुके हुए थे। One of the lady had kidney stone. एक स्त्री के अंदर किडनी स्टोन था। And when we were sharing all the word of God, they had that faith. They collected the faith in their heart. जब परमेश्वर का वचन को हमने कहा, तो उनके अंदर वो विश्वास जाग उठा। And what happened? और फिर क्या हुआ? In the midnight, when the kidney stone was so much unbearable, और रात के समय में जब वो दर्द बहुत असहनीय हुआ, the pain was unbearable, और वो दर्द सहन नहीं हो रहा था, पति पत्नी ने, they prayed together, एक साथ उन्होंने प्रार्थना किया। they just sent us the photo also, और उन्होंने वो फोटो भी हमें भेज दिया। So I like the testimony. Recently it came. और हाल ही में जो गवाही आई, मुझे सुनकर बहुत And as अच्छा Pushpa लगा। sister gave them the word, और जैसा सिस्टर पुष्पा ने उनको वचन दिया, they got faith in them. और उनके अंदर विश्वास आया। They were very new to Christ. वे मसीह में बहुत ही नए हैं। And that night when it was unbearable pain, और उस रात जो बहुत दर्द आया उस सिस्टर को, and both husband and wife prayed, आदमी औरत ने मिलकर प्रार्थना किया। within a minute, 1 मिनट के अंदर ही that stone from the kidney fell out in urine. और पेशाब में वो जो पत्थर था वो निकल कर चला गया। And they sent us a picture of that. और उसका उन्होंने एक फोटो निकाल कर भी हमें भेजा। And I was observing, wow, how it happened. और मैं देख रहा था कि सब कुछ कैसे हुआ। In this lockdown, people are coming to the Lord. इस लॉकडाउन में के लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। Through that family, 3 families, they started to believe. Complete 3 families with the family, they started to believe in Christ Jesus. और उस एक परिवार से 3 और परिवार मसीह पर विश्वास करने लगे। And even in their life, 2 demon possessed people were delivered. और उनके जीवन में भी जो दुष्ट आत्माएं थे वो निकल गए। This all happened because they come together on WhatsApp as a family prayer. They got the word, they heard the testimony of Jesus, they heard the testimony of different people. Prayers were prayed over the people.
और ये क्यों हुआ, ये सारा जो उनके साथ वचन बांटा गया, गवाही बांटी गई, जो संगति का प्रार्थना हुआ। People are getting new houses. They are getting new houses. और लोगों को नए घर मिल रहे हैं। Some people are getting two houses, you know. और कुछ लोगों को दो घर मिले। You remember I was, you know, this last December, I prophesied like this year people will get double. और जैसे कि दिसंबर उस साल के आखिरी दिन में जैसे मैंने भविष्यवाणी किया कि दुगना आशीष मिलेगा। People came to me, they said, yes, you know, we got first one, but now we are double, two rooms, you know, double blessings. People got, you know, increment in their works. People, those who never had jobs, they got new jobs with good increments. जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको अच्छा पगार के साथ नौकरी मिला, एक घर था उनके पास 2 घर आए, ऐसे बहुत अचंभे साक्षियों को हमने सुना। And it's miracles, you know, nowadays I'll tell you, this last 2 months, demon possessed people are getting delivered. और पिछले महीने में मैंने देखा कि दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित लोग थे उनको छुटकारा मिल गया। Yesterday also I prayed, you know, for a demon, the one who is demon possessed, a lady. कल ही मैंने देखा कि एक स्त्री जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। He said, Pastor, you know, last time you came, you did not put your hand on my head. और ने कहा कि पासवान जब पिछली बार आए थे आपने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। I said, see now, I'll keep it. मैंने कहा कि अभी रखता हूँ। She's saying it's burning, my head is burning, it's intolerable. Like. और वो कहने लगे कि मुझे जलन महसूस हो रहा है, बहुत दर्द को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। From head to toe it is burning. सर से लेके पांव तक जल रहा है। After when I prayed over, उसके बाद जब मैंने प्रार्थना she said, how peace I'm getting, how good I feel in my brain. उसने कहा कि मुझे दिमाग में बहुत अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। See, I went to their houses, I was having fellowship with them. उनके घरों में मैं जाकर उनके साथ संगति करता था। When you have fellowship, जब आपके पास वो संगति होती है, God speaks, let there be light. और परमेश्वर जब कहता है कि उजाला हो तो Hallelujah. The word of the Lord, word spoken in the right time. और परमेश्वर के वचन सही समय पे बोले गए। People need God's voice. लोगों को परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। Dear church, come to fellowship. प्रिय कलीसिया, संगति में आ जाओ। Come together on Zoom, WhatsApp, wherever, however you come together, pray, have fellowship. No need to have like here and there talk, but have the talk of the word. यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए परमेश्वर के वचन के बारे में जिक्र करके प्रार्थनाओं में इकट्ठा हो जाए WhatsApp, Zoom में। Pay for the word, good amount for the Bible school. We are giving good word, good lot of word to the students. I want you to sow best seed. You know, in these days, pay for others fees, pay for others food, pay for others residential rent. बाइबल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए जो हम परमेश्वर का एक अच्छा उत्तम वचन को जो बोते हैं उसके लिए आप हो सकता है तो आप उनके लिए बोइए, किसी स्टूडेंट का फीस दे सकते हैं या बाइबल स्कूल में आर्थिक रूप से आप सहायता दे सकते हो। I'll tell you, you are going to speak, you are going to give word through that platform in the Bible school. और उस मंच के दौरान आप बाइबल स्कूल में आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हो। Because you respect word and God will bring the light into your life. क्योंकि आप परमेश्वर का वचन का आदर करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में उसका उजियाला लेकर आएगा। May God bless you with this word. इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। And may the word bring 30, 60, 100 folds in your life. और ये वचन 30, 60, 100 गुना आपके जीवन में फल लेकर आए। May the love of Father, परमेश्वर का प्रेम, and the grace of our Lord Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, and the fellowship of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की संगति may be with you. हमारे साथ रहे। When I say this, जब मैं ये कहता हूँ, what I say, तो मैं क्या कहता? when this love, grace and fellowship will be with you, जब ये प्रेम, अनुग्रह और आशा तुम्हारे साथ रहेगा, when you walk in the light, जब आप उजाला में चलोगे, when you have fellowship with the people of जब God. आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करोगे। Hallelujah. हालेलुया। So what you do? तो आप क्या करते हो? You come together. आप एक साथ आते हो। Dear church, प्रिय कलीसिया, this is the time to come together at Lord's table. यही समय है कि हम प्रभु भोज के लिए उसके मेज के पास आए। We are going to put a song, a Lord's Supper song, where you are going to have a communion service this today. और हम एक गीत को हम प्ले करेंगे, फिर आप उस गीत के दौरान आप प्रभु भोज को ले सकते हैं। You'll see it on the screen. आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Come with the bread and the wine.
और रोटी और दाखरस के साथ तैयार रहो, grape juice and bread or roti, whatever, जो आपके पास उपलब्ध हो, and you just come together, और एक साथ आओ, kneel down, घुटने टेको, and the blood of Jesus will cleanse you. और यीशु मसीह का लहू तो आपको शुद्ध करेगा। Ask forgiveness. और उससे क्षमा मांगो। Every time you have to go to seek the light. और हर बार आपको उजाले के पीछे यत्न से ढूंढना है। Because when you go to God, क्योंकि आप परमेश्वर के पास जब जाओगे, He'll speak light in your life. तब वो आपके जीवन में उजाला बोलेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने